हेलो नमस्कार, मैं हूं अमिताभ मिश्रा माहौल फ्रेम से और हमारे साथ हैं वी आर वेरी प्रिविलेज्ड टू हैव शिवा चड्ढा जी विद अस। बहुत कम लोग होते हैं जो वट एवर दे डू दे नॉट ओनली मेक ए नेम इन द फील्ड बट सॉर्ट ऑफ डिफाइंस द फील्ड बाय व्हाट दे डू। सहारनपुर से स्टार्ट करते हुए शी वेंट टू हंसराज कॉलेज एंड देन शी वेंट टू बॉम्बे। She started her career with Dil Se and did few films, but those films, the roles that she did, जो किरदार उन्होंने निभाए वो बहुत ही पॉपुलर है। आज भी लोग उसको जहन में याद करते हैं, चाहे वो तलाश में किरदार रहा हो। एंड देन शी ऑल्सो डिड पॉपुलर टीवी सीरियल्स, काफी उन्होंने उसमें भी काम किया, जैसे ना ना इस देश लाडो में आपने काम किया। कुछ तो लोग कहेंगे मैं आपने काम किया। मीनवेल शी इज द वन हु हैज ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन डूइंग थिएटर्स ऑल्सो। रजत कपूर के साथ बहुत कोलैबोरेशन रहा है। एंड fortunately something that we have seen in last 5-6 years is she has just blasted the OTT platforms. हर सीरियल हर सीरीज जो हम आजकल OTT पे देख रहे हैं, स्टार्टिंग विद परमानेंट रूममेट्स टू द रिसेंटली रिलीज बंदिश बैंडिट, शिवाजी का उसमें किरदार रहा है और सब इतने यादगार किरदार रहे हैं। सो वी आर वेरी प्रिविलेज्ड टू हैव यू मैम एंड we will talk about her view on working in all these mediums and तमाम तरीके के सवाल जिस पे कि हम बातचीत करेंगे। थैंक यू मैम एंड विल स्टार्ट इट हियर। थैंक यू। मैं बधाई हो देख रहा था और बधाई हो में एक मेरा बड़ा ही फेवरेट सीन है जब उसमें आप सानिया मल्होत्रा के किरदार जो है उनकी माँ बनी है एंड देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डायलॉग यू से टू हर सानिया, दिस फैमिली इज अ सर्कस आई डोंट वांट टू बाय टिकट्स इनटू। थोड़ा मैं इसको फ्लिप करता हूँ। How has been the journey in a circus in which you did not buy the ticket but in which you landed by sheer excellence of your craft? How do you comment on your journey till now? I bought the tickets. I very consciously bought the tickets to be a part of this circus. I made a move to come to Bombay to be a part of this circus. It's been, again, as I keep saying in all the interviews, it's been literally by grace, a journey that has been quite smooth. You know, I can't say that it's been जैसे बहुत होता है, अक्सर हम सुनते हैं कि एक्टर आते हैं बाहर से शहर से और बहुत लंबा टाइम होता है, फिर काम नहीं मिलता या फिर थोड़ा काम मिलता है और फिर मिलता ही नहीं है। तो of course, not that I've not had periods where one's not had the kind of work which one wants. Those that can happen. I think that happened to many actors. Where the kind of work that was coming I wasn't happy about, but then you have to pick up then out of what is available. But largely I would say it's been quite good. Yeah, it's been, yeah. And lately last some years with this OTT, of course, like I said, it's just lovely work which is happening, and I'm very happy to have gotten the kind of roles and in projects like that in the last some years, and I'm really enjoying doing that kind of work now. Yeah. So how do you switch between these mediums? I understand कि सिनेमा की अपनी requirement है, TV serial is altogether a different ball game. थिएटर के पृष्ठभूमि से आप आती हैं, then again going to OTT. How different? How do you prepare yourself for all these mediums which are so different from each other? Theater is very different, actually, as my understanding. But OTT and cinema में मेरे को कोई खास इतना फर्क नहीं दिखता. Because in fact in OTT एक वो टाइम बाउंड ही होता है, ये नहीं है कि आप टीवी सीरीज जैसे आप चले जा रहे करे जा रहे, इट्स अ टाइम बाउंड. की शूटिंग भी टाइम बाउंड होती है, उसका जब वो टेलीकास्ट होता है उसका टाइम भी टाइम बाउंड होता है. तो in the doing of it you feel as if you're doing a big film, long film, but so मुझे कोई खास फर्क नहीं दिखता, because also production values and all of OTT stuff is now so good, and the best of the technicians work in both the fields now. Yeah, so it's not like I don't find much of a difference. Television I find quite difficult. I mean, and I not very fond of as a medium anymore at all. In fact, post when the daily soaps came, उसके बाद में तो मुझे कभी कुछ समझ आया नहीं actually television. In fact, when we first come to Bombay, television was really producing wonderful stuff. I've done some very good television, which was really like being exploited as a medium where it would have a lot of reach, and उसमें
इतना बढ़िया कंटेंट था उस वक्त, पर जब से डेली सोप आए तब से आई थिंक कुछ तो इट विल टोटली नोज डाइव, एंड आई एम now anymore no interest in doing television at all as it stands today. तो भगवान की तो कृपा रहे और मुझे television ना ही करना पड़े, because unless there's some radical change, because the kind of stuff normally that's on television, it's quite soul depleting for actors. Yeah. What is something Theater you is find? something. What is so bizarre? What is one thing that puts you really off regarding TV soap operas that we have in India? There's absolutely no, according to me, no intent on content. कोई content पे कुछ वो मतलब I think जब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, थ्रिल कैसे आ जाए, उतना ही मतलब there's no aesthetic intent. So the lack of that really bothers me. And because it's a time bound thing, in that producer को देना ही है एपिसोड, जाना ही है क्योंकि टेलीकास्ट होना ही है उस टाइम, तो वो एक तरह का जो बाइंडिंग है प्रोड्यूसर पे, आई मीन आई अंडरस्टैंड ऑन वन लेवल, यू नो, एंड देन एनीथिंग गेट्स टर्न्ड आउट इन एनी विच वे, तो किसी एक्टर के लिए तो यू हैव टू अनलर्न। और अगर आप डेली शो के सेट पे जाते हैं तो आपको बहुत अपने आप को बचा के रखना पड़ता है कि आप कैसे बचाएं अपने आप को एक्चुअली, बिकॉज द थिंग्स यू हैव टू डू, इट्स लाइक नथिंग टू डू व्हाटसोएवर विद क्राफ्ट और विद यू नो, just I don't even forget process, you know, I don't even talk about that, but just literally the experience of being an actor is reduced dramatically and almost like undercut when you're on a daily soap set. Yeah, it's like a dukhad experience, but just the money is so good that that's the only reason I would ever go on a daily soap set or on a television set as it stands today. Yeah. दर्शकों के लिए भी बहुत दुखद होता है that whole experience of watching it, but I'm sure there is a market because of which it thrives. पता नहीं यार, वो मार्केट में अगर दूसरा सामान देंगे तो क्या वो मार्केट नहीं लेगी? अब हमको पता नहीं है कि व्हाट इज फीडिंग व्हाट, अंडा पहले आया कि मुर्गी, है ना, यही आपने डाल दिया और फिर वही हिट हो गया, तो फिर मतलब यू नो, वैसे कि वायरल तो कुछ भी हो जाता है ना, अब लाइक अतुल कुलकर्णी की लाइन है बंदिश बैंडिट्स, है ना, वो पता नहीं कि क्या पहले आ गया, तो वो एक बार चिपक गया वो दीवार पे एक वो जाके चीज, तो सबने फिर वही फेंक फेंक के जो चिपकाना शुरू किया, तो अब तो ऐसा हालत है कि पता नहीं भाई, कुछ और फेंक के तो देखें, क्या पता, यू नो। I think OTT उस मामले में एक रेवलेशन रहा है, the kind of content that we see on OTT उन्होंने परोसा है तो दर्शकों ने देखा भी है जी। I would like to think. Speaking of craft, 1998 दिल से जब आपकी सफर की शुरुआत हुई और मैं आपको करेक्ट, सॉरी, मेरी एक्चुअली द फर्स्ट फिल्म आई डिड वाज हम दिल दे चुके सनम, मैं हर बार ये बोलती हूँ, मुझे लगता है कि शायद दिल से रिलीज पहले हो गई, मुझे ऐसा लगता है, मुझे जाके साल देखने पड़ेंगे। दिल से was released earlier. दिल से was released earlier. First shot in the first film I ever started work on, or I got when I came to Bombay, was हम दिल दे चुके सनम। दिल से की रिलीज पहले हुई थी, राइट? तो हम दिल दे चुके सनम ले या दिल से ले, वहां से अभी तक का ओटी, आई वुड से कि अभी तक काफी समय तक आपको एक कैरेक्टर एक्टर का टैग रहता था आपके साथ, अच्छी भूमिकाएं लेकिन छोटी भूमिकाएं मूवीज में आपकी रहती थी। आई थिंक ओटीटीज ने आपको एक वो सॉर्ट ऑफ एक रिकॉग्निशन दे दिया दर्शकों को कि शी इज द मेन लीड एक्टर, तो वो हाउ डू यू फाइंड दैट टैग ऑफ कैरेक्टर एक्टर? तो ये मेल लीड एक्टर क्या होता है? मतलब लीड एक्टर हो तो मेल ही लीड होते हैं? हाँ, आई मीन लीड एक्टर ना, जो कि अक्सर सच ही है, आपने बहुत गलत नहीं बोला, क्योंकि यू नो देयर इज दैट मच स्कोप ओनली स्टिल फॉर यू नो women playing the protagonist, कम ही है, और मतलब इट्स माय विश, आई होप कि आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म में तो कम से कम like in television a lot of women are protagonists, you know, लेकिन वो कंटेंट इतना रिग्रेसिव है और इतना संकीर्ण और छोटा है कि उधर कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वो प्रोटैगनिस्ट होके भी वो कर क्या रही हैं, वो ही कर रही हैं, यू नो, तो इट्स नो, इट्स लाइक नॉट मच टू से फॉर दैट। सॉरी, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? ये जो टैग है कैरेक्टर एक्टर का, जो बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहा है, अभी भी मैं देखता हूँ बहुत जगह जब आपके बारे में बात की जाती है तो कैरेक्टर एक्टर का एक टैग दिया जाता है आपको,
Don't you find it a little uncomfortable? What do I have to say about that? I'm not interested so much even in this conversation. मतलब इसमें क्या है इस बात में? उनको किसी को ये लेबल देने हैं, इसका क्या मतलब है? ये भी सवाल मुझसे पूछा जाता है, पर एक्चुअली ये सवाल में भी कुछ दम है नहीं है, मुझे लगता है, क्योंकि क्या ऐसे कहने से भी क्या, मतलब फाइनली आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड टू मी, यू नो, व्हाट इज द वर्क। आपको मतलब आप मतलब मैंने कभी इस बात पे इतना ध्यान दिया ही नहीं है, जबकि लोग ही इसका एक वो बनाते रहते। हाँ हाँ, मतलब जब समझ ही उतनी रही है कि एक इन वेरी पोलराइज्ड वे ही सिनेमा को समझा गया है कि हीरो हीरोइन, माँ बाप, कैरेक्टर एक्टर विलन, है ना? तो अब उससे एनीवेज बात थोड़ी आगे जा ही रही है, तो अब फिर उन टैग्स का भी क्या करना? I mean, we can let the tags go also, and I don't think it really means I think anything. yes, the finally what matters is हाँ, हमें पसंद आना चाहिए, राइट? शिवा जी, एक चीज जो मैं देख रहा था, और ओटीटी में जितना आपने काम किया है, आई थिंक यू हैव प्लेड ऑल काइंड्स ऑफ मॉम। एक हमारी एक पहले एक मदर की रोल की समझ होती थी जो रीमा लागू जी करती थी या निरूपा रॉय करती थी। दैट वाज द काइंड ऑफ मदर्स हु वर बीइंग पोर्ट्रेड इन हिंदी सिनेमा। बट ओटीटी में कूल मॉम का टैग आपने पा लिया है, इंक्लूडिंग स्केचेस दैट यू हैव डन, सम ऑफ देम आर रियली फैंटास्टिक। if you'd like to talk about you yourself being a mother, what kind of mother you yourself are? किससे सबसे ज्यादा relate कर पाती हैं आप? I'm a mix of all these mothers, I think, that are on this song that I get to portray. Yeah. Cool or to I don't know. वो भी again we are boxing it into something. I just hope it's like they are real characters, ना? जिनकी पिच रियल हो। आप आपकी जिंदगी में भी आप देख के कहें कि अरे हाँ ऐसे तो मैं, अरे वो मेरी वाली आंटी वैसे है, या मेरी बहन ऐसी है, या कोई you know where relatable characters which are real, where they seem three dimensional, flat चिपके हुए कार्टून नहीं है। Yeah, so one that, and I think as a mother I am all of those and some worse than the others. Yeah. एक चीज जो पहले भी आप बात कह रही थी रिगार्डिंग द काइंड ऑफ कंटेंट जो ओटीटी पे है, एंड सम ऑफ देम इज थोड़ा प्रोग्रेसिव तो हुआ है इफ आई कंपेयर विद टीवी सोप ओपेरा, बट somehow I find कि if I see your own roles, be it ताजमहल और बंदिश बैंडिट, अभी भी वो बहुत छोटा पोर्शन है कंटेंट का। अभी भी ओटीटी ऐसा कई बार लगता है एक फॉर्मूला हो गया है, लॉट ऑफ मैस्कुलिनिटी, लॉट ऑफ अब्यूजेस, एंड अभी भी बहुत ही मेल सेंट्रिक थीम्स रहती हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो भी एक फॉर्मूला में बॉक्स हो रहे हैं क्या ओटीटीज? Why don't we see more of Taj Mahals and Bandish Bandit kind of shows? I don't know यार why we don't, because उधर भी क्राइम जो है वो चल गया है with मिर्जापुर and whatever the rest, तो एक सेफ जोन वो बन गया है। बट यार एक तो मैं खुद नहीं देखती बहुत ज्यादा कंटेंट, तो मुझे ज्यादा पता नहीं है। मैं एक्चुअली नहीं देखती बहुत ज्यादा। Of course ताजमहल I saw it and Bandish Bandit I mean I saw Patal Lok recently, which I liked very much because I thought it was made fantastically and written amazingly well, and I'm a very big fan of Jaideep Ahluwalia, so actually I just watched it for him, but I was drawn in by just how well it was made, and how real the for lack of a better word, how wonderful the pitch was of the whole thing. बट या मुझे जो कि मैं अभी कह रही हूँ बहुत के, मुझे लगता है कि बहुत स्कोप है जहाँ पे वाकई स्टोरीज एक्सप्लोर की जा सकती हैं, तो थोड़ा खुलासा और हो तो, बिकॉज बहुत मजा आया यार, बिकॉज आई मीन आई डोंट थिंक इट्स अ स्मॉल जंप फ्रॉम टेलीविजन, इट्स क्वाइट अ बिग जंप फ्रॉम व्हाट वी आर सीइंग नाउ इन टेलीविजन, यू नो। Yeah, literally, and I'm saying that again in terms of just pure tone and pitch, you know, which is not what we see in television. Television is pure Ramleela or operatic thing, ना कुछ बहुत ही pitch ही कहीं और है, emotion का, writing का, performance का, हर चीज का। लेकिन यहाँ पे thankfully वो तो एक level playing field है। अब उसमें स्टोरियाँ और नई आए जिसमें कि हाँ, of course there's a lot of scope for women to be at the center, you know, fulcrum of it all. I would love to see it. नहीं है, of course we know it नहीं है, होना चाहिए। formulaic तो होने में किसी चीज को कोई वक्त लगता नहीं। Yes, it can be a trap that OTT can fall into, कि अब crime अच्छा है तो अब crime, you know, like Taj Mahal apparently I found out hasn't got a second season, उनको नहीं मिला है to be,
Bandish, I'm sure, will have a second season because it's done so well. We would like to see it. Huh? We would like to see दोनों के second seasons. Taj Mahal, apparently I found out because I was speaking to Gitanjali Kulkarni the other day. I'd called her up because I'd seen it again. मैंने उस time ध्यान से नहीं देखा था, and I was just so struck by Geetu's performance again. I called her up to say कितनी बढ़िया उन्होंने किया है यार. तो उन्होंने बताया था कि मेरा तो खैर कैरेक्टर ही मर गया, तो मैं तो आ नहीं सकती थी. लेकिन she said that she spoke to them and the producer told her that they've not been asked for a second, which is so sad because I really think it's a series really well made, really well shot and लिखा मतलब बहुत मजेदार. तो it's sad. तो I hope ये norm ना बन जाए, और I hope कि उससे ये ना हो कि लोग सिर्फ अब फिर crime ही लिखने लग जाएं, और you know, I just hope there's other stuff. Like Bandish is different in a lot of ways. इधर music के साथ में ऐसा कुछ हुआ है, Indian classical music के साथ में तो कभी भी नहीं हुआ. Just in that, just to have music as a central, you know, operating force is just such a lovely thing. And yeah, I hope there is a second season. The पहली season जब था तो बात तो हो ही रही थी, but I think the way it's the kind of success it's met, I'm really hoping, yeah, there will be of course a second season. But I'm sure Taj Mahal has a different fan base. अगर मैं fan शब्द का इस्तेमाल करूँ तो एक बहुत ही अलग किस्म के, एक बहुत ही खूबसूरत टीवी सीरीज है वो. बहुत ठहराव, बहुत खूबसूरती है उसमें. एक चीज जो मुझे मैं पर्सनली आई ऑफन वंडर कि आपने यू हैव वर्क विद दीज डायरेक्टर्स हु आर लाइक द सीजन डायरेक्टर्स, मणिरत्नम हो, बाकी लोग हों, एंड देन जब आप डायरेक्टली इंटरनेट की दुनिया में आती हैं तो आपने रूकीज में कहूंगा यू स्टार्टेड वर्किंग विद द वायरल फीवर, जो पॉसिबल. हाँ, these are not people who have learned film in film schools. Maybe assistant director के तौर पे इधर-उधर काम किया होगा. So how different is to work with these seasoned directors and the new guys out there? It's इतना भी कुछ ऐसा dramatic नहीं है because you go to the set and you pretty much go to do your work. But yeah, you're right. Also with the new guys, the work is of sketches. A lot of work is of sketches, you know. तो वो छोटा है काम, उसका एक तो काम का टोनालिटी सब वैसा ही है जैसे वो लोग भी हैं, तो उसमें आप भूल जाते हो, कुछ है ही नहीं. ये नहीं आप सोचते कि अरे ये तो मणिरत्नम जैसे डायरेक्ट नहीं कर रहे है ना, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है. लाइक आनंद who's directed Bandish, he's such a young guy, yeah? And just he's like, it never crossed my mind also कि अरे ये तो छोटा लड़का है, ये तो क्या कैसे कर. Not at all. I mean, like also the younger lot is just so fabulous, on point, और इतना focus और हार्ड वर्क और सिंसियरिटी से काम करते हैं यार, वो आपको नहीं आता. आई थिंक हर प्रोजेक्ट का अपनी जगह होती है, विद उसको कौन हेल्प कर रहा है. और मुझे ऐसा नहीं याद कि मुझे लगा हो कि अरे यार ये तो कोई रूकी टाइप नए डायरेक्टर है, इनको तो एक आध बार छोटा मोटा हाँ ऐसा हुआ होगा लेकिन इतना ड्रामेटिक नहीं. कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस व्हिच यू वुड वांट टू No, I don't. I'm sure. नसीरुद्दीन शाह के साथ काम करने का अनुभव कैसा था? वो भी एकदम इस मीडियम पे आई थिंक मेकिंग एन एंट्री. तो हाँ, I don't think Naseer has done anything. मुझे मालूम नहीं है, मैं सच्ची में देखती नहीं हूँ तो मुझे मालूम नहीं है नसीर ने और किया है कि नहीं. I don't know. But I have done one film with Naseer called Parzania before this. But हमारा बहुत सालों से थिएटर की वजह से एसोसिएशन है, बहुत सालों से. So I've known Naseer for ever since '92. So very long back, yeah. I've known him from then. So but जितना लंबा काम मैंने कभी उनके साथ पहले नहीं किया, तो बहुत ही बढ़िया यार. वो बहुत ही, जो मैं हमेशा कहती हूँ, एक बहुत ही नॉन फिल्मी टाइप थिएटर वाले हैं एक्चुअली एसेंशियली. तो या उनका अलग ही एक वाइब रहता है और मजा ही आता है फूड उनके साथ. स्पीकिंग ऑफ थिएटर, आप थोड़ी अगर उन दिनों की बात कर पाए तो रजत कपूर के साथ काम करना, सी फॉर क्लाउन की बहुत चर्चा होती है. मतलब जब भी मैं कहीं एक पीस पढ़ रहा था और वहां पे जब जोकर मूवी रिलीज हुई थी, द हॉलीवुड मूवी, एंड देन दे वर टॉकिंग अबाउट द पोर्ट्रेयल ऑफ सच कैरेक्टर्स इन आवर ओन सेटअप. तो मेरा नाम जोकर की बात हुई, सी फॉर क्लाउन की बात हुई. तो ये कहाँ पे? आई वाज रीडिंग ऑन वन ऑफ दोस प्रिंट मीडियम्स कि कैसे यहाँ पे पोर्ट्रेयल हुआ है.
तो हम्म। उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए तो कैसा था वो दौर थिएटर में काम करने का रजत कपूर के साथ? रजत के साथ में हम दिल्ली से हम्म, I've been working and he was a part of the theatre group which I joined in Delhi. So हम्म, Rajat, and we go back very long back, like from my late school days is when I know him, हम्म, that long back. See for Clown was a play we did which he directed, where we all wanted to explore the the idea of clowning and a clown. Uh, तो बिल्कुल ही improvised piece था वो, in the sense that there was no script. We just knew that we have to just do work around the idea of a day in the life of a clown in a way. That was it. उतना ही था, कोई script नहीं है, कुछ भी नहीं है. Clowning, clown का क्या मतलब है वो भी नहीं मालूम. So literally over days upon days of improvisation, totally a devised piece as it's called. वो it emerged and that was a play C for Clown which we ran for very long. हमने बहुत साल उसके shows किए और बहुत travel भी किया उसके साथ. तो या बट रजत उसके बाद में भी शेक्सपियर करते रहे हैं काफी with as you know with clowning with clowns, but I have only done that one C for Clown with him. Yeah, it was a wonderful experience. Yeah. फिर कभी आप चाहेंगे कि थिएटर में जाके फिर थोड़े परफॉर्मेंसेस, नाउ दैट यू आर वेरी बिजी, वुड यू अगेन वांट टू गो बैक एंड डू सम ऑफ दीस प्लेज अगेन, स्टेज इट? These तो शायद नहीं, but कुछ नया या होगा, या there is हमेशा कुछ एक ना कुछ रहता है. There is one thing in the offing right now for 2021 end. Let's see वो क्या है. Already they have a script and there's a director who's wanting to do that. तो वो अगले साल के लिए already ये कुछ planned है. तो देखें तब तक क्या होता है दुनिया में, पता ही नहीं है यार अभी हो क्या रहा है. सब कुछ इतना Yeah. सब आपकी फिल्मोग्राफी की बात करते हैं, तमाम चीजें. व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट यू, एक चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगी वो द जिब्रिश मूवी दैट यू हैव डन, अ शॉर्ट फिल्म. Right. राइट. But you're the first person who has asked about that in all the interviews I've done lately. हाँ, हाँ, किसी भी ने नहीं पूछा उसके बारे में. तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? एक तो चीज जो मुझे स्ट्राइक करी पर्टिकुलरली कि अब बताइए, फिर मैं पूछूंगा कि कैसी कुछ चीजें इतनी मेहनत और मन से आप बनाओ और फिल्म सर्किट में घूम के रह जाती हैं, हाँ. तो मतलब वाइडर ऑडियंस तक जो नहीं पहुंच पाती है, इसका कुछ दुख होता है क्या? पर ये शॉर्ट फिल्म्स का तो वो है ही ना, मैंने कहाँ पे. It went to a festival I think in Venice where it did win something also I think. But yeah, उधर ही तो short films, yeah, that only. And then yeah, but it was very wonderful because our director is very lovely, Milid Dayamande, and बहुत अच्छे इंसान है और बहुत मजेदार उनका एक ह्यूमर है. तो उन्हीं की लिखी और डायरेक्टेड है वो. और हाँ, खूब मजा आया because also it was just such so up my alley because I had done C for Clown. तो मतलब जिब्रिश वगैरह तो लगता है अरे हाँ वो तो ऐसी ही है. तो it was just like like a mini theater piece in a way. जिब्रिश में बहुत हाँ मजा आया था करने में, एक ही दिन कर लिया था. हाँ, मतलब एक पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा कि कहीं मैं पढ़ भी रहा था, द लव एंड फेथ इज समथिंग व्हिच वाज वेरी इंटीग्रल टू द होल आइडिया जब वो बना रहे That's थे. his name of his company. राइट. एंड दैट इज हाउ दे से कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट, तो वी चांस्ड अपॉन दिस आइडिया कि ऐसा कुछ क्यों ना करें. I don't know. ही ने मुझे याद नहीं है ये बात. अच्छा उन्होंने आई वाज कही है. रीडिंग वन ऑफ द पीसेज जहां पे उन्होंने ये बात कही है. एक चीज आपने, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मुझे आप हर वक्त आपका जो कॉमेडी के रोल्स रहे हैं, बीट द स्केचेस और इवन द रोल इन बधाई हो, और बहुत ही सीरियस रोल जो ऐसे बंदिश बैंडिट में आपने किया, वो किरदार जो बस आंखों से ही पूरी मूवी में बात कर लेता है, बहुत कम डायलॉग्स हैं. तो मतलब दैट इज समथिंग व्हिच आई फाइंड रियली अमेजिंग कि बहुत कम डायलॉग्स के साथ सब कुछ कर जाना. एंड देन सर्टेन जहाँ पे कि बहुत डायलॉग्स हैं, हर वक्त बोलना, जैसे परमानेंट रूममेट्स, जब भी आप आएंगी स्क्रीन पे तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही. So, what is your favorite part of doing? Is it comedy or is the really serious thing that you do? What do you enjoy most? ऐसा कुछ भी नहीं है यार. Any role or character that is really etched with love and with an understanding, with nuance, with complexity, with beauty is very मजेदार to play. वो किसी भी उसमें हो सकता है. मेरे को ऐसा कोई वो नहीं है
comedy. No, it depends on what is the project and what is this character in the project and how well. अगर स्क्रिप्ट ही अच्छा नहीं होगा तो आप कितना भी अच्छा वो भी लिख दो तो उससे भी कुछ होने वाला नहीं है. It's always a whole thing. So how wonderfully the project has been put together and how wonderfully has this character been created. तो वो कैसा भी हो या वो कॉमेडी हो या ऐसा, you just have to bring it alive, you know. वो किसी भी genre में हो सकता है. I don't, yeah, मतलब मैं consciously नहीं सोचती उसके बारे में. एक मुझे याद है एक पोस्ट जो बहुत पॉपुलर हुआ था, नीना गुप्ता ने इंस्टाग्राम पे डाला था. नीना गुप्ता जी ने डाला था अबाउट शी वाज लुकिंग फॉर वर्क. हाँ मैंने सुना है, and then Amit had read it and then he had apparently हाँ I heard this thing. Right. And she often talks about it कि कैसे aging is a phenomena and आपके craft कितना भी अच्छा हो लोग भूल जाते हैं आपको. So do you think craft is enough to land meaty roles या आपको बहुत ज़्यादा hyperactive रहना है social media पे, Instagram पे? So I am one of those animals who doesn't really know this at all. I have never been a part of social media. My Facebook पहला तो account ऐसे बंद ही हो जाता है क्योंकि कभी post नहीं किया, पहले जाना नहीं वहाँ पे. मैं Instagram पे इस बारी मई में after lockdown on my daughter's insistence I have gotten onto Instagram. I've not been on Twitter, no social media all these years of my career. So I'm one of those odd ones. आपने दो तीन चीजें पूछी हैं. So I don't know that what it is that makes you get work. I don't know. Because despite me not being on social media, by the grace of God, work has been coming. है ना? So not like I said, sometimes काम वैसा नहीं आ रहा जो आपको पसंद है, but फिर आप उसमें से choose करते हो, है ना? It's a great blessing to all the time have so many projects जो आपको मतलब समझ ही नहीं आ रहा जिसमें से आप कौन से pick up करोगे क्योंकि सभी इतने अच्छे. But that work I've been fortunate enough to consistently get work. ये fact है. और मैं social media पे कभी नहीं थी, ये भी fact है. ना मेरा कोई networking का system है, ना मेरे कोई फिल्मी दोस्तों में आना जाना है, ना मैं पार्टीज में जाती हूँ, ना मैं, तो मेरा कोई नेटवर्किंग नहीं है. मैंने कभी किसी डायरेक्टर को आज तक फोन करके नहीं बोला कि आप मुझे काम दे दीजिए, या मैंने आज तक नहीं किया है ये, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम टू बॉम्बे. सो वो नहीं होगा मुझसे, व्हाटएवर दैट थिंग इज, आई एम नॉट एबल टू डू दैट काइंड ऑफ थिंग. एंड सो आई genuinely do not know what it is and that creates work. I think it's something X which I really don't have an answer for, है ना? Because I see, like I say, I see so many talented, so many beautiful people, you know, around all the time, and anybody can do so much because there are such wonderful set of people around. But not everybody, I say, is doing the kind of work I'm sure that they want to do or with the consistency they want to do. Similarly, like it's not that I'm consistently doing the kind of work that I want to do. I'm not. But now, last some years, more and more work is coming consistently, which I'm enjoying doing more and more. But not that ऐसा होता है कि आपके पास में periods upon periods पे ऐसा काम आएगा जो आपको बिल्कुल. But you have to pay the bills, you have to do the work, so you have to keep at it. So you do that work, and ठीक है. Then अभी नहीं है तो but something better will come, and it, by the grace of God, has been. This is that. So I do not know the science, and I say that मुझे इसका maths नहीं मालूम कि इस जगह में how does work happen, because I'm sure there are people who are constantly networking or doing, within quotes, are very active on social media or whatever on social media. I'm not sure if they are doing, you know, all the. So I don't know. I mean, is it that they are constantly doing the work that they want to do, or consistently doing it? I don't know. अगर इतना ही होता तो फिर सभी उतने ही एक्टिव और सभी उसी तरह के करते, तो फिर सभी के पास में उसी लेवल का होना चाहिए काम, या I feel, I mean, I don't know, it's a very confusing thing and I don't understand it. Ageism is another thing. Of course, it's there in every industry. Yeah? Why not? Why just ours? It's there in every industry, ageism. But yeah, what was your thing that she said that over time people forget you and all that? Right. And Despite the craft you have, people forget you. So then I don't know whose responsibility it is also to remember you in that sense.
there is such a big pool of actors, so people are choosing who they want to choose for whatever reasons they are choosing. Yeah, I personally don't want to be sitting and commenting on that also too much, because अभी किसी डायरेक्टर को किसी एक्टर के साथ में बार बार काम करना है, तो वो उस डायरेक्टर का प्रोरोगेटिव है यार. मैं नहीं कहना चाहूंगी कि आपने उसको क्यों लिया और उसको क्यों नहीं लिया, बिकॉज वो एक डायरेक्टर का प्रोरोगेटिव है ना. आई थिंक इट्स अ क्रिएटिव कॉल, और व्हाटएवर काइंड ऑफ कॉल, कंफर्ट कॉल, एंड दैट्स द कॉल. I personally would not like to say कि क्यों. And over time does मुझे इसका जवाब नहीं मालूम है, कि एजिज्म की वजह से आपको काम नहीं मिलता, but there are enough old people around who also probably are working. So I don't know that with ageism, if you're not networking, you don't get work. What is the combination Right. of getting or not getting work? I don't know, because I'm thinking in whichever the combination is, that still doesn't guarantee work in this place, is my understanding till now. Right. Nothing guarantees work. आप नहीं कर पाओगे, और कुछ शॉर्ट टाइम के लिए कर पाओगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पैन आउट होगा. लाइक स्टार थिंग के ऊपर के स्टार किड्स व्हाटएवर, आई मीन या दैट स्टार किडनेस विल probably get you your first film or your second film, but it can't sustain your career just Right. because you're a star kid. And we've seen enough examples of that around, where yeah, it does, you can't sustain it. तो फिर क्या वजह, अगर वही चीज चलती होती, तो फिर they should have guaranteed work forever, but they apparently don't. So I'm saying I don't know what combination works in this place यार. कुछ तो मेरे ख्याल से तो कुछ मिस्टीरियस एक सितारों का खेल है. उसमें एक एक्टर का क्या इंटरवेंशन होना चाहिए, ये मुझे, जैसे कि मैं भी इंस्टाग्राम पे फॉर एग्जाम्पल, उससे मुझे अभी समझ आ रहा है कि अच्छा है कि लॉट ऑफ पीपल हु वॉच माय वर्क are able to directly on some level feel as if they're connected to me. I can see that. Does that mean that means more work for me? I don't know, because till now I have never done it, and still the directors who have called me know that I'm not even on Instagram or on any, where a lot of people believe कि आप इतने followers हो तो आपको बुलाया जाएगा, ऐसे भी एक धारणा है. तो फिर ऐसे तो मुझे बहुत सारा काम नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि मैं तो 4 महीने से हूँ इंस्टाग्राम पे यार, मैं तो किसी सोशल मीडिया पे भी नहीं थी. तो frankly I don't know the answer to this. क्या combination से can guarantee you work? मुझे लगता है कोई ऐसा perfect combination है ही नहीं तो सभी कर लेते है ना. Everybody would do it, they would ace it, what that was a formula. I don't think there is, but if there is ageism, yeah, but then I think ageism in the sense for women very strongly, in the fact that very soon, the minute you hit a certain age, it can be a very young age, you will not be considered for roles which are non-motherly, non-distingly. But that's just it's a very sad thing. It's again a reflection of our society, right? That's how whatever is there is going to come in our work of place of work. So ageism is there, bilkul, as are there many isms are there which are in our society, which find their way in our film work. Yeah, so it's. I think that's a social stereotype which gets there, I guess. As there are several isms that we struggle with in our society, right? There are हजार we are struggling with, particularly. मतलब इससे ज़्यादा time political और social scenario में इतना ज़्यादा isms से जिनसे हम जूझ रहे हैं, शायद कभी भी नहीं रहा हो. तो बहुत मुश्किल in a way और hard वक्त है ये with the isms. तो वो जो भी isms हैं वो यहाँ भी आएंगे यार, क्योंकि लोग तो वही है ना, अलग तो नहीं हो जाएगा. Yeah. Shivaji, I assume आपको जाना भी है. I'll just want to wrap up with one question that I have. What is more interesting which is lined up? अभी आगे क्या क्या है? हाँ, आगे के भी क्या plans हैं? अभी मिर्जापुर 2 आएगा वो प्लान है, तो लोग आप देखना अक्टूबर में आएगा वो. हाँ, बिल्कुल. But I don't know यार, now the life is just so uncertain. The films जो बन चुकी हैं, अभी कुछ उसका थोड़ा बहुत डबिंग वबिंग रहता है. The beautiful movie which I really loved, which I shot before lockdown, called Paglet. मैं सब जगह उसकी बात करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है वो फिल्म. वो आएगी, अब कब आएगी, कहाँ आएगी नहीं मालूम. And then there are 3-4 films, short films, not short films, but small films, which are ready. Hopefully the producers will release it. Then a lot of work which had to happen now. इस वक्त में जो shoot होना था इन 4 महीनों में, अब वो push हो गया है आगे. अब वो भगवान जाने कब
शुरू होगा, कैसे होगा, सबकी डेटें, सब, so it's going to be one mess. But yeah, there's some very interesting scripts that are there right now, which had to get shot now, which will get postponed probably to end of the year, coming year. Yeah. थैंक यू शिवाजी फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड हम लोग के लिए तो हर वक्त ही अच्छा है फिल्म्स और सारे OTT प्लेटफॉर्म पे जो भी कंटेंट आ रहा है और पर्टिकुलरली जिसमें आप हैं तो सब कुछ देखेंगे एंड आई थिंक दैट्स इंटरेस्टिंग टाइम फॉर द व्यूअर्स आई वुड से सो हर तरीके के कंटेंट के लिए हाँ, जिसने भी बंदिश बैंडिट्स ना देखा वो देख लो, बिकॉज आई रियली फील कि ऐसा म्यूजिक के साथ में है ना, मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कह रही बिकॉज आई एम इन इट, बट वाकई 360 डिग्री सबके लिए थाली में कुछ है उसका ना, आई फील दैट्स द काइंड ऑफ फीडबैक आल्सो वन इज गेटिंग। तो अगर मतलब मन हो और टाइम हो तो आप देख लीजिए जिन्होंने ना देखा। बहुत ही बेहतरीन है एंड पर्टिकुलरली हर कैरेक्टर, अगर आपको ये जानना है कि चुप रह के भी कितनी चीजों को आप कन्वे कर सकते हैं, आई थिंक that is the part which Shivaji is playing, which is definitely a arc of the series, I would say. So thank you so much. Thank you so much for taking the time and speaking to us. Thank you. All the best. Thank you. Bye. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।